Yeah, it will start. Don't worry. Let's see. Okay. Click to OK and let me present my screen. Okay, I think now it's visible to you. I will just clear the canvas. Fine, everything is ready. Okay, let's start. So yesterday we have seen the four important terms. I hope you have understood that meaning of each and everything. There is a future value of amount means what? Once again, I will just brush up it. So if I'm having some amount, then what its value after 20 or 10 years? Are you getting it? Okay, means how much I have to spend for the same. Okay, then we have seen future value of annuity means what? If I just keep on accumulating something per month, okay, for so and so year, for so and so return of return interest, okay, then how much amount I will be getting after that years. Okay, then present value means what? If I'm getting something in the future, then what is its value today? Fine. And present value of annuity means what? If I want to get some amount per month for some particular area, some particular period, then how much amount I have to invest now today? That is called the present value of annuity. Okay, so these are the four terms which you have just learned yesterday. Now today we will see one important thing, one more important sheet that I will show to you. Yeah, this one. This one is a very important sheet. Okay, and guys, trust me, whatever I'm teaching you in this course now means what are the financial planning people do charge for this one. Okay, what are the financial planning I'll be teaching? What are the fundamental analysis? If you just search for this fundamental analysis course ka fees, do you know how much people charge outside? I had also paid for that, and I want everyone to know. That's why I'm just taking this audit course. Anyone having idea how much do people charge for this fundamental course of share market? So around It's 50, roughly, yeah, yeah, around 50,000. yes, around 50,000. Okay, so you are getting it like a free, so please take advantage of it and just do it seriously. Okay, people really take a lot of money for this one, this particular course, fundamental analysis. Okay, and after that for the technical they charge a lot, which I'm not going to teach you in this particular course. Yeah, technical is also there, but we are going to stick to the fundamental analysis, and that is also enough for investing purpose. Getting? Yeah. So let's start once again. Just take this course seriously. You are getting it free, so please value it. Fine. Yeah. So let's start. What this series is all about, and this is very important shit. Let's see. Yeah. What is this say? Try to understand. This is what here I have just written the name for this one. This series is about how much you have to invest per month from the current age till retirement age, so that you can get sufficient amount after retirement for remaining life. Okay, so this is what the planning is. Okay, now you can just see, try to understand this particular sheet very well, and you will be surprised, really you will be surprised, means how this stock market will help you a lot. Okay, let's see, try to understand. So what I'm doing is that now you are in second year. Okay, and that's why I'm just assume your age is around 20. Yeah, so here what I've done is that I've just assumed present age. Is my sheet visible to all properly, or shall I zoom it? Sir, it's visible properly. Yes, sir, it's Okay, visible. okay, fine, because I want everyone to understand it. Oh, what's happened? Okay, yeah, fine. Let's say. So your present age, I'm just considering you're of 20. Try to understand. Now this set will help you a lot for your financial planning, and this is really important, because some people do not do it, and then later on they realize, means though I was having good salary, but I have not done that financial planning properly, so now I'm just facing it. Okay, and some people, though they do not have that good handsome salary, but yes, if they do that financial planning, really they will enjoy later on. Okay, try to understand what I'm saying. Try, let's see. So here I'm just considering the percentage. I'm just considering you all of age at 20, as you are in second year, तो फिर या 20 के ऊपर नहीं रहेंगे, at the most 20, 21, 22 उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे. ठीक है, let's suppose I'm just considering this retirement at the age of 60. Okay, you can just consider the number whatever you want. Now once again, this is the financial city, you can plan accordingly, and this will help you if you want to retire early, तो भी इसको मतलब तो भी आपको help करेगा. ठीक है, you can just put your retirement age where you want to retire. ठीक है गाइस, अगर ये सीट अगर मेरे को मुझे मेरे 20 एज पे अगर पता होती तो रियली आज मैं रिटायर्ड होता. लेट इट बी, या फाइन. सो दिस इज व्हाट रिटायरमेंट age. I'm just considering the 60 normal criteria, 60 or 58, whatever you consider. ठीक है, these are the working years, means for how many years you have to work. ठीक है, so that is a 40 years, so just 60 minus 20, this is the formula which is applied over here, and yeah, that's it. So that's why we are getting 40.
ठीक है. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब में जब मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं आफ्टर रिटायरमेंट, इफ यू वांट टू मतलब लिव दैट हैप्पी लाइफ without any compromising, then how you have to plan. So that is what this sheet is all about, and you can use it for many purposes. Okay, so try to understand first this one, then I will just tell you how to use it for different purposes. Okay, so life expectancy, let's suppose I am assuming कि 85 years तक जिएगा मैं. ठीक है, you can just assume whether you want to go for a 70, 75, 85 जो भी है, but let's suppose I'm just assuming like whatever 85. Fine. So means what? Remaining life after the retirement means after that 60. So if I'm just going up to the 85 means what? I have to just do adjustment, or I have to just plan for that remaining 25 years, because at that time I won't be working. I need to have that handsome amount in my hand so that I can just enjoy my life. ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या करना once again. So I hope you understood this one. What is this once again? Percentage. I'm just considering what is your percentage is 20. I'm just making this sheet for you people only. Fine. Then retirement, let's suppose you want to take it at 60. Then working years, let's suppose you are going to work for 40 years. Then life expectancy, let's suppose you will live up to the 85. 85 बहुत बड़ा मतलब या बहुत है. मैं तो सोचता हूँ कि यार 60 तक जिएगा तो भी मैं ठीक है, उसके ऊपर नहीं चाहिए अपने को. या then remaining life after the retirement is 25. Fine, means after the 60 25 years you have to just manage. So these are the years for which you have to just do the financial years where you won't be earning. ठीक है, अब क्या करना है? Now you have to just go to your father or mother. ठीक है, you have to just go to your family and you have to ask what is expense per month, how much we need today. Try to understand how much we need today, means how much expense, how much your monthly expenses. ठीक है, for our house. ठीक है, I'm just asking for your house. ठीक है, so it can be anything, मतलब I'm just considering roughly 90,000. It may be 40,000, 50,000, whatever. ठीक है, so I'm just taking this figure as a 90,000. You can just change it the way you want. Just go to your father and ask him मतलब महीने का अपना खर्चा कितना होता है. ठीक है, and that खर्चा you have to put it over here. ठीक है, now try to understand. So this is what my current expense. Now this is the amount which I required now, means जो मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ मस्त, उसको अगर मुझे जीना है तो मतलब इतना पैसा चाहिए अभी के लिए at this stage. ठीक है, so now what I want is that now I want to know कि मतलब if I get retired at the age of 60, तो उसके बाद मतलब जो भी 90,000 है, are you getting it? If I get retired after मतलब 60 years, then उसके बाद वो खर्चा कितना लगने वाला है. ठीक है, आई कैन नॉट प्लान अकॉर्डिंग दिस 90,000 बिकॉज 90,000 का वैल्यू उस टाइम पे ज्यादा रहेगा. ठीक है, सो हाउ टू गेट हाउ मच अमाउंट आई विल बी रिक्वायरिंग आफ्टर 60 years टू जस्ट लिव द सेम लाइफ. I'll be using this one, future value of the amount. Are you getting it? ठीक है, so you can just put over here कि 90,000. Fine. Then the period will be, let's suppose 40. Okay, and inflation rate, let's suppose I will assume 6%. So if you just see from here, now this is what I have just given to you, and I hope that everyone knows this very well now. ठीक है, because इधर से मतलब यही सब यूज करके मैं इधर यूज कर रहा हूँ ये वाले सीट में, समझोगे. ठीक है, so 90,000 मेरा करंट एक्सपेंसेस है. So I want to know after working years, after that 40 years, मतलब जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना खर्चा लगेगा टू लिव सेम लाइफ. ठीक है, so I will just put it over here. This is what I have done. 90,000 इधर रखा मैंने. ठीक है, for the 40 years I'm just assuming the 6% inflation rate. Inflation कितना रेट से बढ़ रहा है, that I'm assuming. Getting? So I'm just getting this one 9,25,000. मतलब अभी जो तेरा 90,000 खर्चा ना वो बाद में 9 लाख होने वाला है, समझो 10 टाइम्स हो जाएगा वो. And still is going to happen. 40 years a big period. ठीक है, so it's a 9,25,714. Now this is the amount which we require per month after 60, when you will be at age of 60. Getting it? ठीक है, so that is what the amount is here. So yeah, so after working years I want this one. ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि समझो, अभी मुझे प्लानिंग मतलब करना क्या समझो. ठीक है, so now to get this particular amount per month, after my age of 60 till the age of 85. Try to understand what I'm saying. Try to just be concentrate properly and try to listen each and every word which I'm saying. Okay, once again let's see. Now what I want to do is that now this is the amount which I require when I will retire. ठीक है, जब मैं एज ऑफ 60 पे रहेगा उसके बाद मुझे इतना खर्चा चाहिए पर मंथ. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नाउ आई वांट टू नो कि एट द एज ऑफ 60 जब मैं रिटायर होऊंगा मेरे पास कितना अमाउंट मुझे आई वांट टू इन्वेस्ट, और आई वांट व्हाट कॉर्पस आई वांट. कॉर्पस समझता है? डू यू अंडरस्टैंड कॉर्पस? नो सर. कॉर्पस मतलब क्या है? ह्यूज बल्क अमाउंट जो मुझे एकदम डिपॉजिट करना है, ऐसे समझो फिलहाल. जस्ट कीप इट सिंपल. आई डोंट वांट टू गो इन डेफिनेशंस. अपने को जस्ट
एम अपना ये कि फंडा क्लियर रहे, बस खत्म। ठीक है, सो अभी कॉर्पस मतलब क्या, एक ऐसा मोटा अमाउंट जो मुझे आई विल जस्ट पुट इट एट एज ऑफ 60 सो दैट उसके बाद मैं हर मंथ 9,25,000 निकालता रहूं। ठीक है, मतलब ये वाला थिंग, ये वाला थिंग, ये वाला थिंग। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इतना अमाउंट, मतलब दिस इज द अमाउंट व्हिच आई विल रिक्वायर एट द एज ऑफ 60, ये इतना मुझे मतलब लगेगा पर मंथ लगने वाला है, वो मैंने अमाउंट डाल दिया इधर। ठीक है, दिस इज सेम एज दिस वन, 9,25,714। ठीक है, दिस इज अमाउंट व्हिच आई एम कीपिंग ओवर हियर। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज मतलब आई वांट टू नो जब मैं रिटायर होगा तो एट द एज ऑफ 60 में कितना अमाउंट बैंक में डालूं, लेट्स सपोज एक बैंक में डालूं। ठीक है, सो दैट हर महीने में इतना निकालता रहो 9,25,000 एंड मेरा लाइफ आराम से जीते रहे, मतलब अप टू 25 years। ठीक है, so that is the amount which I am keeping over here। ओके, देन पीरियड्स आई एम अज्यूमिंग दैट 25 years के लिए मुझे चाहिए, एंड जो भी स्कीम में जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया लेट्स सपोज वो मुझे 8% रिटर्न देने वाला है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है कि अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब एट द एज ऑफ 60 जब तो रिटायर होगा, ठीक है, तब तेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। अब ये पैसा देखो आपके मतलब तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये कितना है बॉस, इट्स लाइक आई नीड टू काउंट, इट्स लाइक 11 crore 99 lakh 39,772। माय गॉड, मतलब जब तू 60 एज का होगा ना तब तेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तब जाके तू आराम से जिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, I'm just coming again, let's see what I'm saying, what I'm doing। ठीक है, लाइट टू अंडरस्टैंड कैसे यूज किया मैंने फॉर्मूलाज को। ठीक है, या सो दिस इज द अमाउंट व्हिच आई रिक्वायर्ड आफ्टर 60 पर मंथ, मुझे इतना लगने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे आई वांट टू विथड्रॉ दिस इज फॉर द 25 years। ठीक है, लेट्स सपोज जिस स्कीम में मैं डालेगा उसमें 8% रिटर्न है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग 8%। इफ यू जस्ट रिड्यूस दिस वन तो ये अमाउंट बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो लेट्स सपोज आई एम अज्यूमिंग कि 8% कुछ तो स्कीम रहेगा व्हिच विल गिव द रिटर्न ऑफ 8% मंथली। ठीक है, नाउ सो एट द जब इफ यू वांट इट फॉर द 25 years, so जब तू रिटायर होगा तो इतना पैसा तेरे को चाहिए, 11 करोड़ गाइस, बहुत छोटा अमाउंट है ना 11 करोड़। व्हाट डू यू थिंक? चल इसको रफली राउंड अप करेगा तो मतलब 12 करोड़ तो है ही, बहुत छोटा अमाउंट है ना 12 बैंक करोड़। के लिए। बहुत हाँ? छोटा है सर, बहुत छोटा है सर। बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है यार यार। सो 12 करोड़ चाहिए तेरे को, ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 60, जब तू रिटायर होगा तब जाके तू बोलेगा नेक्स्ट 25 years में मस्त मजे करेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अभी मुझे करना क्या, अभी मुझे करना क्या, अभी मेरा प्लानिंग क्या है देखो। ठीक है, नाउ दिस इज द अमाउंट व्हिच आई वांट टू एक्यूमुलेट एट द एज ऑफ 60। अब उसके लिए मुझे अभी से प्लानिंग करना है। सो हाउ मच अमाउंट आई हैव टू इन्वेस्ट मंथली फ्रॉम नाउ सो दैट जब मैं रिटायर होगा मेरे पास इतना पैसा बचेगा। समझ में आ रहा है क्या? ट्राई टू समझो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पहले फिलहाल खर्चा कितना मंथ का वो मैंने लिया डैडी से। ठीक है, देन आई जस्ट कैलकुलेटेड कि आफ्टर 40 years उसको कितना, वो उसका कितना पैसा होने वाला है। ठीक है, नाउ दिस इज अमाउंट व्हिच आई जस्ट केप्ट इट ओवर हियर। समझ में आ रहा है? मतलब ये मुझे हर मंथ चाहिए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि जिधर मैं इन्वेस्ट करने वाला पैसा उधर मुझे 8% का रिटर्न मिलने वाला है, और वो ये अमाउंट मुझे 25 years तक चाहिए मुझे हर मंथ। ठीक है, तो इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा एट द एज ऑफ 60। ठीक है, अब अपने को जुगाड़ इसका करना है। getting I just want to do jugaad for this particular money, getting it? ठीक है, now let's see, is that clear up to this one? Any doubt? No, sir. No, No, sir. sir. Okay, फटे। ठीक है, now let's go for next one. If you have any doubt then whenever I ask ना just say किस डाउट है करके, अगर एक बार में आगे गया तो फिर से पीछे जाना मजा नहीं आता। ठीक है, let's see, अभी देखो क्या करना है। अभी ये कॉर्पस अपन ने निकाल, ये समझे ये अमाउंट किधर से आया, अपने को इधर से आया, ये जब फॉर्मूला से लगा कि ये हाँ इतना अमाउंट लगना है, सेम अमाउंट इज वही हो। ठीक है, अभी देखो अभी देखो अभी देखो, समझो। अब नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मच आई हैव टू कंट्रीब्यूट पर मंथ फ्रॉम टुडे सो दैट आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट एट द एज ऑफ 60। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इधर मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेट्स अज्यूम किए। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट 6% पे बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज इफ आई जस्ट पुट सम मनी इन बैंक, पुट सम मनी इन बैंक। ठीक है, बैंक का रिटर्न 8% बहुत ज्यादा हो गया यार, 8% नहीं 7% पकड़ो, उसके ऊपर तो देते ही नहीं, मतलब एफडी वगैरह जो भी है, जो अगर ईयरली कितना रिटर्न है वो दिखने का। ठीक है, सो बैंक ले सपोज 7% दे रहे हैं। ठीक है, देन इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड मतलब क्या, डू यू अंडरस्टैंड इंडेक्स फंड? एनीवन अंडरस्टैंड इंडेक्स फंड? No, sir. ठीक है, कुछ वादा नहीं No, गाइस, sir. मतलब जब मैं पूछूंगा ना फ्रीली बता दो सर ये पता है नहीं पता बिंदास, बिकॉज ये सब कॉमर्स टर्म्स है। ठीक है, जो अपने को पता होना चाहिए, दो भी यार इंजीनियर अपने को ये आना ही चाहिए। पैसा बनाना तो सबको मतलब चाहिए ना बॉस, दो इंजीनियर नहीं तो कोई भी है, आना ही चाहिए। ठीक है, इंडेक्स मतलब क्या, अपने इंडिया में दो इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, समझेगा, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गो इन डीप ऑफ दैट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज नाउअडेज इफ यू आर वाचिंग दैट सीएनबीसी आवाज और एनी सी बिजनेस वगैरह, आपको कुछ नहीं समझेगा वो लोग क्या बोल रहे हैं।
ठीक है, बट आई गारंटी यू आफ्टर दिस कोर्स यू विल लव टू वॉच दैट पर्टिकुलर चैनल्स, ठीक है। या सो इंडेक्स फंड मतलब क्या कि अपना जो निफ्टी नहीं तो सेंसेक्स उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट तो उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। So if you just roughly take that average when from when the Nifty started, okay, so the return which is given is nearly about 13%, nearly about 13%, ठीक है। So means what, if you just simply Google for an index fund, कौन सा भी इंडेक्स फंड ले लो, वो म्यूचुअल फंड रहेगा तो भी चलेगा, बट इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाला चाहिए, ठीक है। So इस रिटर्न roughly return around for per year is a 13%, ठीक है। इफ यू इन्वेस्ट वो हियर ना तो आपको मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं रहेगा तो भी चलेगा, जस्ट इंडेक्स फंड में डाल, तेरे को 30% रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज, नाउ दिस इज व्हाट द रिटर्न आई एम अज्यूमिंग फॉर द इंडेक्स फंड, एंड लेट्स सपोज नाउ इफ यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, you are attending my lectures, you have done that fundamental analysis, are you getting it, ठीक है, and after that you are managing to get a return of 17%, guys, is possible, very much possible, I will just prove everything, ठीक है। कुछ भी हवा में बात नहीं करेगा, जो भी है सब रियल है, are you getting it, ठीक है। so share market, let's suppose you are learning it, and now this 17% also I am assuming the less one, are you getting it, it's not the what do you say, बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा ही अमाउंट है, are you getting it, ठीक है। अरे यार मैं बैंक का रिटर्न 8% अज्यूम करता फिलहाल तो, fine, yeah, let's say, okay, so if you are doing the share market and if you manage to get a return of 17% per year, ठीक है, so these are the returns rate I am just assuming, ठीक है। now this is what I have done for you, ठीक है। अभी ये वाला कॉलम क्या बताएगा, now this is what amount to be deposited per month, मतलब per month मुझे कितना डालना है, what are the investment I am looking for, whether I want to put it in bank, whether I have to put it in Hello, index sir. fund, whether I have to put it in share market, हाँ बोल। Sir, what is corpus, sir? कॉर्पस मतलब एक बड़ा अमाउंट जो मुझे डिपॉजिट करना है एट अ टाइम पे, Okay. समझा, मतलब एट द एज ऑफ 60 तेरे को इतना अमाउंट चाहिए तेरे पास, सो दैट यू कैन विड्रॉ दिस 9,25,000 पर मंथ, समझा। हाँ, मतलब ये डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि हम लोग 9 लाख निकाल पाए। यस, ये तुझे डिपॉजिट करना होगा कौन से भी स्कीम में जिसका रिटर्न तेरा 8% है, तब जाके तेरा मंथली 9,25,000 आएगा, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, fine, yeah, now let's just come to this one, yeah, now here what I have done is that now these are the amount which I have just taken for you, मतलब if bank is given 8% का रिटर्न, मैंने बहुत ज्यादा अज्यूम किया बट ठीक है, index fund I'm just assuming 13% and share market assuming 17%, ठीक है। now this is the amount which you have to invest per month, तब जाके तेरे को इतना पैसा मिलेगा जब तू 60 years का होगा, ठीक है। so if I just considering, मतलब if I just invest in a bank, so per month you have to take out 34,000 guys, पर मंथ यू टू इन्वेस्ट 34,000, सर तू बोलेगा सर अगर इतना मैं इन्वेस्ट करना लगा पर मंथ, जस्ट इन्वेस्ट मतलब जैसा बैंक में डालता रहा, ठीक है, तो मैं खाएगा क्या और मजे क्या करेगा, आर यू गेटिंग इट। 34,000 यू मतलब थिंक, मतलब 34,000 हर मंथ इन्वेस्ट करना फ्रॉम द एज ऑफ 20, ठीक है, पॉसिबल होगा 34,000 पर मंथ, Quite difficult. No, sir. या बिकॉज अगर Difficult 34,000 है, अगर but बैंक में डालता रहेगा तो possible है। खाएगा क्या, जिएगा क्या, तेरा फैमिली नहीं होगा क्या, बाद में अरे खर्चा सर नहीं बट पड़ेगा क्या, हाँ बोल। हाँ सर, बट जब तक फैमिली नहीं है तब तक तो ये लाइक खाने पीने का खर्चा अपनी खुद की फैमिली उठा रही है, Yes, तब yes, तक यू yes, कैन yes, ट्राई yes. Now this इन्वेस्ट is ऑन what I'm इट। just assuming. Everything I'm assuming for the worst case, guys. ठीक है, एकदम खराब केस के, अच्छा बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 90,000 भी मैंने पकड़ा है ना, 90,000 खर्चा तो तेरा होने ही वाला नहीं है, पर मंथ का 90,000 होता है क्या, व्हाट डू यू थिंक, जस्ट टेल मी द फैक्ट। सर डिपेंड्स, नहीं No, सर। sir. डिपेंड्स सर की फैमिली में Sir, कितने या लोग हैं, 90,000 कितना घर एक्चुअली है ट्राई टू आपका। अंडरस्टैंड, दिस इज द एक्सपेंस व्हिच आई एम कंसीडरिंग फॉर होल फैमिली, जब तू रिटायर होगा तो तेरा खुद का देखने वाला है, समझ में जो भी पकड़ रहा है ना सब ऐसा एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं फुल प्रूफ वाला पकड़ रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब चिटिंग वगैरह करके कुछ, नो, getting it, because try to understand after retirement you want to just serve yourself, not to the family, are you getting it, तेरे को खुद के लिए, बट तभी भी मैं मतलब फैमिली का खर्चा पकड़ रहा है 90,000, समझ समझ समझ, इट कैन बी अराउंड 20 मतलब 30,000 ऑल्सो इफ यू जस्ट एक्सपेक्ट फॉर योर सेल्फ, गेटिंग इट, बट मैंने 90,000 पकड़ा है, पकड़ में मोटा मोटा अमाउंट लिया, मतलब प्रैक्टिकल थॉट समझे अपने को, ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल सर। सिचुएशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ फेक में, ठीक है, एंड या आई विल टेल यू लेटर ऑन द थिंग्स, ठीक है, या लेट्स से नाउ दिस इज व्हाट, नाउ इफ यू वांट टू जस्ट गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट एट द एज ऑफ 60, इतना मुझे पर मंथ डालना पड़ेगा, माय गॉड 34,000 बहुत होता है गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, ठीक है, wherein I'll be getting a return of 13%, guys, compounding really at wonder, yeah, it's at wonder, compounding really is, it's magic, ठीक है, but that is also the fact, though it is a magic, though that everyone knows that, मतलब most of the people knows that, but very
फ्यू लोग ही उसका फायदा उठाते हैं, मतलब वेरी फ्यू लोग ही उसका फायदा उठा सकते हैं, नॉट उठा सकते मतलब दे डू नॉट गेट दिस पर्टिकुलर फायदा बिकॉज दे डू नॉट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो फिर वो कंपाउंडिंग, बिकॉज कंपाउंडिंग काम कब करेगा, जब तू लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट इफ आई जस्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बैंक में मैंने डाला जिधर 8% रिटर्न आ रहा है तो मुझे 34,000 पर मंथ डालना पड़ेगा। ये सब फॉर्मूलाज वगैरह यू कैन चेक इट फ्रॉम द गूगल ऑल्सो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये एक्सेसिव में बना के दे रहा हूं, आपको जिस वैल्यू डालना है एंजॉय करना है। ठीक है, आई विल नॉट गो एक्सप्लेन दैट फॉर्मूला कैसा वगैरह है, उसके ऊपर मत जाएंगे बिकॉज वो अपना एम नहीं है, मुझे ये बताना है। ठीक है, now if you just invest in an index fund, let's see whether return of 13%, your amount drastically come down. That is what is compounding is. like 34,000 किधर और 7,000 किधर, इधर जस्ट तेरा रेट डबल भी नहीं हो रहा है और इधर तेरा अमाउंट फिर 5 टाइम्स लेस हो गया। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट इज कंपाउंडिंग। ठीक है, बिकॉज कंपाउंडिंग हो रहा है, कंपाउंडिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। ठीक है, या सो दिस इज व्हाट इंडेक्स फंड, सो वेयर योर रिटर्न ऑफ 13%, मतलब तेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब इफ यू डू नॉट वांट टू, आज तूने अगर इधर ही ये पर्टिकुलर कोर्स छोड़ दिया, ठीक है, एंड जस्ट तेरे को मैंने कुछ बताया कि इंडेक्स फंड करके रहता है उधर इन्वेस्ट कर, खत्म। तो तेरे को मंथली 7413 इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना, खत्म, तू 7 साल के बाद मस्त जिएगा। ठीक है, सो दिस अमाउंट या 7,000 चल पॉसिबल है, उतना कर सकता है, 7,000 पर मंथ तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इट इज इजी। ठीक है, सो 7,000 दिस इज व्हाट अमाउंट यू कैन जस्ट इन्वेस्ट। सर हाँ बोल। सर इंडेक्स फंड में लॉस नहीं होता क्या? 100% फुल प्रूफ है क्या? यस, फुल प्रूफ मैं बोलेगा अभी तक तो फुल प्रूफ ही है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट बट यस, मतलब फुल प्रूफ में प्लस बताऊं माइनस तो होता रहेगा। या थोड़ा बहुत होता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में गारंटेड फुल सर प्रूफ। लॉन्ग इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म, वंस अगेन इफ यू हैव टू कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, या आई विल जस्ट टेल यू, लेट्स सी you just asked me, that's why I'm just saying, otherwise I would have gone to the next step. ठीक है, just a minute. So सर so can we do a thing in like अभी जो हम बैंक में डाल रहे हैं, we are putting approximately 34,000, right? Yes, And what we are putting into the index fund is just 1/5 of that. Can we decrease the amount in the bank because the return is only 8%? listen, we are not putting, मतलब this is what, मतलब you have to just select only one option, मतलब I'm just Okay, I have sir. just done it for the only one, मतलब अगर बैंक में डालना है तो इतना डालना पड़ेगा, इंडेक्स फंड में डालना है तो इतना डालना पड़ेगा। Are you getting it? Okay, sir. Understood. Getting Thank you, it? sir. Yeah, it's not कि मतलब बैंक में भी डाला इधर भी, अरे इतना डालेगा तो गया ना फिर। Yeah, let's see. Now this is what the chart which I have opened for the Sensex. I will just do the maximum. But sir, ideally, like we should split it in all three, ना ताकि like एक गया No, तो no, 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 no. That is that I will tell you, मतलब वो उसको भी बाद में कैसे करने का वो बाद में बताएंगे। ठीक है, let's see। ठीक है, बैंक में तो ज्यादा रखना ही नहीं है, because अभी तो मतलब ही नहीं, अभी तो मैं बोलता बैंक में मत ही रखो, डिपॉजिट में वगैरह। ठीक है, अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में करो, बॉन्ड में करो, नहीं तो फिर पीपीएफ में वगैरह करो, लेट इट बी। वो सब बाद में आएंगे, बिकॉज सब लोग को नहीं समझेगा फिर। ठीक है, या नाउ दिस इज व्हाट द सेंसेक्स इज ऑल अबाउट, व्हिच हैज स्टार्टेड फ्रॉम, लेट्स सपोज किधर था 1986 से अभी तक डाउन गए, मतलब ओवर द पीरियड, मतलब इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है गाइस? Sir, increase हुआ है. इंक्रीज हुआ है। या इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज होगा ही गाइस, वो डाउन नहीं जाएगा। अगर शेयर मार्केट गया ना अपन, पूरा इंडिया डूबेगा फिर। आई यू गेटिंग इट? बिकॉज सब कंपनीज, मतलब पूरा क्या बोलते ये क्या यार, आई जस्ट फॉरगॉट दैट टर्म, बिकॉज मतलब आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं ना, वो इससे ही चलता है। आई यू गेटिंग इट? ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट द सेंसेक्स का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, बढ़ते ही जाता है, या बीच में अप डाउन तो होना ही है सेंसेक्स से। ठीक है, मतलब ये शेयर मार्केट है, मतलब ये अप डाउन होना तो गारंटी है। ठीक है, सर इट विल नॉट गो कंटिन्यूअसली स्मूथली, पॉसिबल ही नहीं है। guys, I will just take the your doubts वगैरह जो भी नोट करके रखो, प्लीज। I will take it at the end because we are having 160 people, तो हर एक को मेंटेन करते रहेगा तो फिर खत्म, अपना मेन एम नहीं होगा। ठीक है, तो I will keep last 10 minutes for your doubts. Is that fine? यस सर। Okay, otherwise वो लिंक दूर जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो दिस वाज द सेंसेस का परफॉर्मेंस, नीचे गया कि ऊपर गया गाइस? ऊपर गया है। Getting it? ठीक है, एंड दिस रिटर्न इफ आई जस्ट मतलब accumulate, मतलब ये में इफ आई जस्ट कंसीडर फ्रॉम दैट 1986 टू दिस वन, तो रफली अराउंड 13% तो आ रहा है। Are you getting it? Roughly around 13% आ रहा है वो। Fine, ठीक है, so this is what मतलब शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस which I have just put in front of you। ठीक है, तो मतलब those who are saying मतलब नीचे जाएगा, but if you are just considering for the short term, if you are considering for the long term ना, फुल फ्रॉम ऊपर ही जाने वाला है वो। Getting it? ठीक है, दिस इज व्हाट मतलब हिस्ट्री अभी तक का। ठीक है, एक्चुअली आई कैन नॉट, मतलब आई शुड नॉट से कि ऊपर जाएगा, बट यस जाएगा ऊपर, मुझे भरोसा है। Getting it? Because we cannot predict the future, but ठीक है जाएगा ऊपर। Getting it? ठीक है, yeah, let's see, I'll just come to the sheet again। Okay, so if you just put in index fund तो इतना रहेगा,
And let's suppose if you are doing this course and if you manage to get a return, keep in mind guys, once again I'm discussing all the practical cases. 17% be is achievable. Achievable मतलब क्या 20%, मतलब actually I will just tell you, I will just train you for the 20%, not for the 17%, but तभी भी मैं 17% पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है. whatever I'm taking ना सब रियलिस्टिक ले रहा है, ऐसे नहीं कुछ हवा में सब कुछ, ठीक है. सब मतलब ऐसा मतलब वर्स्ट कंडीशंस वगैरह अज्यूम करके अपन चल रहे हैं, ठीक है. तो शेयर मार्केट का रिटर्न आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, लेट्स सपोज यू मैनेज टू गेट अ रिटर्न ऑफ 17%, देन दैट अमाउंट ड्रास्टिकली ड्रॉप टू जस्ट 2000. समझो, मतलब फ्रॉम दिस स्टेज यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट 2000. दैट्स इट. यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट 2000 इन द शेयर मार्केट पर मंथ, ठीक है. एंड उसके बाद आफ्टर दैट 20 years मींस आफ्टर द एज ऑफ 60 आपके पास इतना पैसा रहेगा. समझ में आ रहा है, ठीक है. अब 2000 बड़ी बात है क्या पर मंथ तुझे इन्वेस्ट करने के लिए? नो नहीं सर. सर. ठीक है. एंड गाइस आई एम जस्ट डिस्कसिंग ऑल द प्रैक्टिकल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 2000 अभी का है, तेरा सैलरी भी तो बढ़ेगा, वो मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि पूरे 40 इयर्स तेरे को 2000 डालना है. अरे 10 इयर्स के बाद तेरे 2000 कुछ नहीं रहेगा. यू कैन जस्ट इन्वेस्ट 10,000 आल्सो, बट स्टिल आई एम कसिंग द 2000. आई एम जस्ट कसिंग ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स. ऐसे नहीं कुछ हवा में ऐसा बड़ा बड़ा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन इंक्रीज दिस अमाउंट आल्सो लेटर ऑन, ठीक है. यू विल फाइंड दिस वन एज अ स्मॉल अमाउंट. 2000 कुछ नहीं समझे, मतलब आफ्टर 5 years यू विल फाइंड लाइक अरे 2000 कुछ नहीं मेरे लिए पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए. उतना तो आपका पॉकेट में नहीं रहेगा, ऐसे अभी का खर्चा रहेगा. Are you getting it? ठीक है. So this is what. So share market मतलब you have to just invest 2000 per month. 2000 में नहीं, उससे भी कम है, but I'm saying 2000. So 2000 per month आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, for 40 years. So तेरा इतना अमाउंट बनेगा. If you want to check it over here, yes you can check it. Let's suppose I'm saying, yeah, this is I'm just investing 2000. Let's say 2000 for 40 years. If you want to just cross check and let's suppose I'm assuming the return of 17%. सब क्रॉस चेक करेंगे, कुछ हवा में नहीं है, ठीक है. दिस इज द अमाउंट व्हिच आई एम गेटिंग. इज दैट सेम? या 1,20,000 उतना ही अराउंड है, ठीक है. बिकॉज ये 1987 है, आप जस्ट अज्यूम दैट 2000, तो फिर ये इतना 12 करोड़ तेरा बनेगा. समझ में आ रहा है? तो ये ट्रू है, मतलब कुछ फेक नहीं, मतलब सब कैलकुलेशंस राइट है. आई गेटिंग इट. तेरा 9,60,000 आएगा, बट तेरे को 12 करोड़ मिलेगा 40 ईयर के बाद. जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट 2000 पर मंथ. दैट्स इट. इजंट इट ग्रेट? Yes sir. Yes, sir. Yes. यार गाइस, आपके आवाज में दम नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है सब मरे हुए लोग हैं. Yes sir. Yes sir. Yes, यार मतलब मजाक नहीं चल रहा है इधर, सब सही चीज है. तो आपके ऐसा रोंगटे खड़े होने चाहिए, ठीक है. जस्ट 2000 Sir, लेकिन- पर मंथ एट द एज ऑफ 7 एट द रिटर्न ऑफ 17%, 40 इयर्स के लिए 12 करोड़ बनेगा. अरे तो इन्वेस्ट 9,60,000 कर रहा है, तेरे को 12 करोड़ मिल रहा है. जमीन आसमान का फर्क है बस. ये मतलब इट्स नॉट सर गिरेगा 96 तो भी उतना ही लॉस 96. होगा ना सर. सॉरी. गिरेगा तो भी उतना ही लॉस होगा ना सर. तो share अरे भाई, market- बट वी आर कसिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ना बॉस. लॉन्ग पीरियड में कब गिरा है, मतलब लॉन्ग इफ मतलब दैट्स व्हाई आई शोन दैट चार्ट टू यू ना 1986 से आफ्टर. 2008 जैसे क्राइसिस आ गया. या बैंक वो में तो डाल- आने ही वाला है उस टाइम. तो मतलब फायदा उठाने का, मतलब दैट विल हैव आल्सो, मतलब वो एग्जिट कब मारने का वो देखता हूँ. मतलब अगर मुझे अगर लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है. एट द लास्ट इफ आई फील कि मतलब एग्जिट कब मारना है, एंट्री कब मारना है, ठीक है. बट कीप इन माइंड 2008 के अभी का क्राइसिस देखना, 2020 का इतना खतरनाक क्राइसिस आया था, डायरेक्ट हाफ हो अभी गया. तो बट market देख फिर से ऊपर ही है. सर इतना वो जंप ज्यादा नहीं नहीं मारा आया उसने. था. सॉरी. वो ज्यादा नहीं आया था. 2008 का आएगा ज्यादा आया था. या बट नहीं, अभी का आई थिंक 2008 का देखेंगे तो वो कुछ तो 30% फॉल था, बट अभी का अपना 50% से भी ज्यादा फॉल था. लेट इट बी, दैट वी विल सी लेटर ऑन. मतलब वो ग्राफ देखेंगे समझ में आ जाएगा. बट कीप इन माइंड मार्केट फिर से रिकवर करता भी है, पर उस टाइम पे वही तो चाहिए, पेशेंस. पेशेंस इज द अल्टीमेट की इन शेयर मार्केट इफ यू टू जस्ट अर्न, ठीक है. दैट्स व्हाई आई सेड कि मतलब कंपाउंडिंग सबको पता है, बट सब लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता बिकॉज लोग निकलते रहते हैं. और निकलते रहेगा तो कंपाउंडिंग बनेगा नहीं बॉस. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. इफ आई टेल यू फैक्ट रिगार्डिंग द शेयर मार्केट, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है शेयर मार्केट का, वो इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाता. दिस इज व्हाट आई हैव सीन ओवर दिस इयर्स. बट जिसको कम नॉलेज है ना, उसको पता है इंडेक्स फंड में डाल दिया, वो मजे करता है एक्चुअल में. पर जिसको जाता है ना, अरे गर गया फटाक से निकाला, ऐसे करते रहते, मतलब दे डू नॉट हैव अ पेशेंस, ठीक है. तो वो प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है. लेट इट बी दिस थिंग आई विल टॉक लेटर ऑन. या so this is what I was telling, मतलब 2000 if you just invest per month at the rate of 17%, 40 years के लिए तेरे को इतना अमाउंट बनने वाला है तेरा 12 करोड़. समझ में आ रहा है, ठीक है. एंड नाउ लेट्स सी, ठीक है. नाउ हियर आई एम जस्ट कंसीडर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तेरा जो भी है 0 रुपीस है. मतलब इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग स्टार्टिंग में, मतलब जो बोलते हैं ना अपन, इधर देखा था अपन ने ये जो प्रेजेंट, मतलब इफ यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग 0. बट लेट्स सपोज इफ यू गो टू द डेटा एंड डैडी से बोला कि सर डैडी मुझे कुछ तो इनिशियल अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है. लेट्स सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई जस्ट इन्वेस्ट 50,000 initially, whenever I'm starting
इनिशियली मैंने 50,000 डाला है, उसके बाद मंथली में 2,000 करना, मतलब 2,000 अगर मैं करेगा तो देखो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई एम जस्ट कीपिंग इट 50,000, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो क्या चेंज होने वाला है, योर अमाउंट ड्रॉप टू ओनली 1200 गाइस। 1200 का रिस्क तो तू बिंदास ले सकते हैं पर मंथ का, समझ में आ रहा है? जस्ट इनिशियली यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट 50,000, दैट्स इट। इट मैटर्स अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, जस्ट मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 डाल दिया, तेरा अमाउंट देख 1200 रुपए। अरे 1200 कुछ नहीं है यार, मतलब ऐसे देखने गए तो यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क, मतलब तेरा जस्ट होटल इनकम कर खत्म, तेरा पैसा निकल जाएगा इतना मार्केट मांगने का, ठीक है। बिकॉज मतलब समटाइम्स व्हाट आई से इज दैट, मतलब लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट सट्टा है, ले तू सट्टा ही खेल, मतलब ऐसा रख के मतलब ये 1200 मेरे को गया तो भी कुछ चिंता नहीं है, समझ में आ रहा है? तब अगर इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर फियर इन माइंड तो 1200 जाने देना फिर। अब गेटिंग मतलब उतना तो रिस्क वी कैन टेक इट, बट गारंटी नहीं जाएगा। इफ आई जस्ट टेल यू, इफ आई जस्ट डू अकॉर्डिंग टू व्हाट आई विल टीच, getting it, ठीक है। So if you सर invest initially just 50,000, then that price goes to that 1200। चल बोल फटाफट। सर ये 50,000 किधर शेयर मार्केट में डाला है इनिशियली? या शेयर मार्केट में where the return is 70,000, ठीक है। देख ना इधर सब अमाउंट चेंज हो गया। अगर 50,000 में बैंक में डाला इनिशियली तो तेरा 34,000 मंथली बनेगा, 50,000 तूने अगर इंडेक्स फंड में डाला तो तेरा 6,800 बनेगा, मतलब यहाँ तुझे डालना है पर मंथ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई जस्ट यस मेक इट वन, लेट्स सपोज इफ यू जस्ट कन्विंस योर डैडी, अदरवाइज लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग जॉब फॉर लेट्स सपोज बीई के बाद, मतलब व्हेन यू विल बी ऑफ एज ऑफ 21 वगैरह, सॉरी या 21 22, जब तू रिटायर, जब जैसे सपोज तूने कॉलेज से निकला, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टेलिंग ऑल द थिंग्स व्हिच आर द फैक्ट वन, ठीक है। जैसे सपोज तुझे कॉलेज से अगर तुझे मतलब 5 लाख का, मतलब 5 लाख तो मिनिमम पैकेज है अपने कॉलेज का, उतना तो मिलता है, ठीक है। 5 लाख तेरा मिनिमम कॉलेज है, पैकेज है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज तू मतलब जस्ट यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग द जॉब, स्टार्टिंग में तेरे ऊपर क्या रिस्पांसिबिलिटीज रहती है क्या? आई एम जस्ट टेलिंग एवरीथिंग फैक्ट, मतलब ये नो कुछ सर। ऐसा हुआ मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो 5 लाख में से तू 2 लाख तो मतलब बचा सकता है ना, 3 लाख उड़ाना यार, किसने ना बोला है, ठीक है। एंड अगर वो तूने डाल दिया तो आई एम जस्ट मेकिंग इट 1 लाख, 5 लाख में तो 1 लाख तो डाल ही सकता हूँ इनिशियल ईयर्स में, जब तक तू मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तेरे पे आती, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज इफ आई जस्ट पुट इट 1 लाख, अगर मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अरे 500 रुपए आ गए, इतना तो रिस्क ले ही सकता है ना गाइस, समझ में आ रहा है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट ये 1 लाख मतलब अपने डाला है, मतलब इसका भी रिस्क ही ले रहे हो आप लोग, ठीक है। बट गारंटी है ये रिस्क नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू डू स्टॉक मार्केट विदाउट स्टडिंग इट ना, तेरा पैसा डूबेगा, मैं लिख के देता है। बट इफ यू डू इट प्रॉपर्ली एनालिसिस करके, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन दिस एंटायर कोर्स, इफ यू डू इट प्रॉपर्ली ना, आपका पैसा गारंटेड बढ़ेगा, वो भी मैं लिख के देगा चाहिए वो, ठीक है। बट यू हैव टू डू इट पेशेंसली एंड यू हैव टू डू इट, मतलब वो कॉन्स्टेंटली करना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो लेट्स सी, मतलब मैंने जस्ट 1 लाख डाल दिया तो तेरा 500 रुपया पर, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कंपाउंडिंग, दिस इज ऑल द कंपाउंडिंग का जादू। 2,000 का डायरेक्ट 500 रुपये में आ गया, समझ में आना है क्या? ठीक है। बट आई विल अज्यूम जीरो ओनली। नाउ आई नो, मतलब आफ्टर दैट, मतलब जैसे आप कंप्लीट करोगे आपका इंजीनियरिंग, जैसे आपको जॉब लगेगा, यू कैन एटलीस्ट इन्वेस्ट 1 लाख 2 लाख तो आप कर ही सकते हैं इनिशियली। आई गेटिंग इट? ठीक है। बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग जीरो, एंड जीरो रहेगा तो भी 199, मतलब 1987 आता है, ठीक है। एंड दैट यू कैन अफोर्ड पर मंथ, इतना लॉस होगा तो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। बट होगा नहीं, वो मेरी गारंटी है। Are you getting it? ठीक है। So this is all about, this is all the shit is all about, this will help you कैसे करना है, ठीक है। एंड गाइस मतलब दिस 70% भी मतलब इट्स नॉट कि मतलब ऐसा हाँ में अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है, मैं करके बताऊंगा आपको। 70% आना पॉसिबल है एटली, मतलब लोग तो इससे ज्यादा कमाते हैं 20%, लेट्स सपोज मैंने 20% कमाया, लेट्स से, फिर देखो क्या 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 फर्क होता है। 700 रुपया, इफ आई एम इन्वेस्टिंग नथिंग, if I'm investing nothing, अगर if I'm just getting that return of 20% per month, sorry per year, ठीक है। and this is also possible, I will tell you how to get this one, getting it, ठीक है। so 20% ही आपको लेना है, उसको मतलब इतना भी आप कर सकते हैं एक्चुअली, जस्ट बाय यूजिंग फंडामेंटल। हाँ, if you do the technical course तो yes you can do it easily, but fundamental से 20% तक आ सकता है, but तभी भी I'm just considering 70% only, 70%, ठीक है। तो इतना अमाउंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट पर मंथ, तब एट द एज ऑफ 60 तुझे इतना अमाउंट मिलेगा, एंड उसके बाद तो आराम से जी सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग यू कैन जस्ट यूज इट लाइक एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 35, बट या लाइफ एक्सपीरियंस से भी थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज्यादा होता है 85 ईयर, लेट्स सपोज आई विल जस्ट से 70 इयर्स। अच्छा, डू यू वांट टू लिव लॉन्ग की, मतलब 70 इयर्स वगैरह काफी है, 100 इयर्स चाहिए कि 70 इयर्स काफी है? 70 काफी है सर। 70 अरे बहुत बहुत है काफी सर। है, मतलब मैं तो कंटाल जाएगा बुढ़ापे में ऐसा, मतलब फोकट में रहेगा तो सर भगवान 60 को बोलेगा 65 उठा ले यार मेरे को, सॉरी। 60 65 बहुत है।
Yeah, six, really that's what मतलब actually I don't know मतलब how much will be our lifespan after 20-30 years कितना रहेगा, but actually 70 वगैरह बहुत होते हैं, but ठीक है चल अपन 70 पकड़ लेते हैं, getting it? So अगर आपको let's see अभी try to understand, ठीक है? मतलब अगर मतलब मुझे प्लान करना है 35 ईयर को रिटायरमेंट, तो भी अपन हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आई वांट टू गेट रिटायर एट 35, ठीक है? सो 15 साल ही काम करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70, मतलब तुझे जस्ट लाइक 35 इयर्स का जुगाड़ करना है, 35 इयर्स के लिए जो पैसा कर लेना है, ठीक है? हाँ, बट आई एम जस्ट नाउ जस्ट टेकिंग दैट रियलिस्टिक फिगर, बिकॉज दिस इज व्हाट, अगर मुझे पता होता ना 20 इयर्स में, तो अभी मतलब मैं 3-4 साल बाद रिटायरमेंट लेता था, ठीक है? ये 90,000 मैंने बहुत पकड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा पकड़ा 90,000 खर्चा. दिस इज फॉर फैमिली, दिस नॉट फॉर मी, ठीक है? नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट रिड्यूस टू समथिंग, लेट्स सपोज 50,000 भी कम, मतलब 50,000 पर मंथ अकेले के लिए व्हाट डू यू थिंक, गुड अमाउंट है कि बहुत मतलब कम अमाउंट है? ज्यादा है सच बोलो तो। थोड़ा सा अरे ज्यादा बहुत है। ज्यादा एक्चुअल में, बहुत ज्यादा एक्चुअली 50,000 पर मंथ, ठीक है? बट स्टिल लेट्स सपोज इफ आई जस्ट कंसीडर दिस वन, तो लेट्स सी अगर मैंने 50,000 कंसीडर किया मतलब एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा है 50,000, ठीक है? एंड या लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट रिड्यूस लेटर ऑन, वी विल सी, ठीक है? अगर मैंने 50,000 है, ठीक है, मतलब पर मंथ, तो मुझे 20,000 पर मंथ शेयर मार्केट में डालना है, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने कुछ तो मैनेज किया स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला मतलब इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग का जॉब है, स्टार्टिंग में तेरे पास दे दो 5 लाख का पैकेज है, तूने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और तू भूल गया उसको, लेट्स सी 70,000 पे आ गया, ठीक है? एंड इफ यू मैनेज टू गेट अ रिटर्न ऑफ 20%, लेट्स सी सब ये रियलिस्टिक है सर, 11,000, इतना तो अपन कर सकते हैं ना? मतलब इफ यू वांट टू प्लान रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 35, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल गाइस. एंड ये मैंने 50,000 पकड़ा है, 50,000 एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? बट 50,000 पकड़ो, बिकॉज क्यों आई एम सेइंग दिस 50,000, बिकॉज द थिंग इज दैट एंड आई एम मेकिंग ए मिस्टेक, नो या इज 50,000, ठीक है? बिकॉज 35 के बाद तू एंजॉय भी तो करेगा ना बस, आई गेट इट? मतलब 35 मतलब उसके जैसे बहुत जिंदगी जीना नहीं है अपने को, 35 पे तू मस्त हट्टा कट्टा यंग रहेगा, मतलब यू हैव टू एंजॉय, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग 50,000 में मंथली खर्चा करेगा बस, आर यू गेटिंग इट? ठीक है? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द 50,000 में अगर कुछ बचा वो भी तूने इन्वेस्ट किया, तो ये तुझे 50,000 पर मंथ मिल रहा है, उसके साथ तू 11,000 डालना, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? उसके मतलब दिस इज व्हाट, मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज दैट टू अंडरस्टैंड सब रियलिस्टिक है, ठीक है? ये 50,000 तू जस्ट खर्चा कर रहा है, ठीक है? इतना तेरे को अमाउंट मिलेगा, उतने डाल दिया, 50,000 पूरा खर्चा कर, बट इसमें से अगर तूने बचा और वो भी इन्वेस्ट किया, तो वो तो मैं पकड़ ही नहीं रहा, आर यू गेटिंग इट? अभी सच में पूरा 50,000 तू उड़ाएगा, समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Are you all understanding? So this is मतलब that's why I'm saying, मतलब अगर ये मेरे को पहला पता होता ना यार, मैं पक्का प्लान करता, बट ठीक है, nevertheless अभी पता है कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा मैं, are you getting it? ठीक है? So this is what is everything is realistic. तो मैंने 50,000 पकड़े, ठीक है? वो भी 35 ऐसे, और वो भी मतलब पकड़ रहा है कि ये 50,000 तो पूरा खर्चा करेगा, कुछ नहीं इन्वेस्ट करेगा, मतलब इफ यू कैन डेवलप द फॉर्मूला कि तो इसमें से मैं 10% मतलब आई कैन जस्ट पुट सम 10%, मतलब 5,000 अमाउंट फिर से मैं इन्वेस्ट भी करूँ, बट वो भी नहीं पकड़ रहा है मैं. Are you getting it? ठीक है? So share मतलब yeah, but the considering is that you are investing 2 lakhs at the starting. इससे actually you can just invest मतलब अगर if you want you can just invest थोड़ा सा बहुत also, मतलब थोड़ा ज़्यादा also, if you just starting की year में लेसे मतलब जैसे तेरा जॉब लगा and for 3-4 years तक तो शादी नहीं करेगा बॉस, कम से कम जब तक सेटल नहीं होता, and in that period actually you can earn good amount, मतलब लेसे 5 लाख का पैकेज तेरा, ठीक है? 3 साल में तेरे को 15 लाख मिलेगा, 15 लाख में से तो 10 लाख खर्चा करना, आर यू गेटिंग इट? 10 लाख भी मतलब एक्चुअल मतलब अकेले के लिए खर्चा करने के लिए बहुत है, आर यू गेटिंग इट? ठीक है? एंड अगर लेट्स सपोज तूने मतलब 5 लाख अगर सेव किया, समझो 5 लाख अगर सेव किया, लेट्स सपोज इफ आई एम जस्ट पुटिंग 5 लाख, तो देखिए 6,000 ही होता है, तो 6,000 ही तो कर सकते हैं ना, गेटिंग इट? एंड इधर में मतलब मैंने 50,000 पकड़ा है, ठीक है? सो मतलब दिस इज ऑल, मतलब इफ यू वांट टू प्लान रिटायरमेंट अर्ली, ठीक है? अदरवाइज यू कैन जस्ट कंसीडर ये अपना रिटायरमेंट लाइफ जो भी है 60 वगैरह, you can just keep the things as it is 60, ठीक है? या ये माइनस में चला गया बिकॉज हाँ अभी ये इधर मैंने 20 पकड़ा है, दिस विल मेक इट 0, ठीक है? एंड आई विल जस्ट मेक इट अपना रोज का मतलब रियलिस्टिक वन 70, समझा? ठीक है? या नाउ इफ यू जस्ट अज्यूम कि मतलब तेरा लाइफ एक्सपेंसेस 70 है, देख तेरा अमाउंट कितना रिड्यूस हो जाता है, आर यू गेटिंग इट? मतलब 60 पे रिटायर होगा, 10 साल ही जीने, तो देख अमाउंट तेरा कितना रिड्यूस होता है, कितना रिड्यूस होता है, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट यू कैन जस्ट मतलब आप अभी खेलो इसके साथ, एक कैलकुलेटर बना के दिया मैंने आपको, ठीक है? जस्ट प्ले विद इट एंड जस्ट ट्राई टू मैनेज, मतलब आपको कैसा अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करना है, ठीक है? ठीक है? लेट्स सपोज मैंने रिटायरमेंट एज लेट्स सपोज मैंने 40 पकड़ा, अब ये खेलने का ही है बस, बाकी कुछ नहीं,
40 पकड़ा, ठीक है ना, मैंने ऐसा मतलब कुछ इनिशियल अमाउंट कुछ नहीं पकड़ा, तो फिर तेरे को 10,000 करना है मंथली इन्वेस्टमेंट, तो तुम 40 एज पे रिटर्न हो सकता है। गाइस 40 एज पे रिटर्न होना बहुत सही बात है, बहुत सही, मतलब इट्स गुड थिंग इफ यू आर गेटिंग रिटर्न एट 40 एज, ठीक है। एंड वंस अगेन आई एम नॉट कंसीडरिंग एनी इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, इसमें हम इन्वेस्टमेंट अगर 1000 डाल दिया, 1 लाख डाल दिया, 9000, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 9.5 इतना तो मैनेज कर सकता है जब तू वर्किंग रहेगा, मतलब वो 20 ईयर्स के लिए जब तू काम कर रहे हैं, 9.5 तो उतना तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इफ यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड तो तेरे को 18,000 डालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस इज द शीट व्हिच आई हैव गिवन टू यू, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, one more important thing is that मतलब this matters a lot, why I'm teaching this right now at this age, मतलब मुझे क्यों चस्का मतलब आप लोग को पढ़ाने का, ठीक है, बिकॉज जो मैंने गलती किया ना, आई डोंट वांट यू टू डू, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। जो मैंने गलती मतलब व्हिच आई स्टार्टेड लेटर मींस एट द एज ऑफ 30 लेट्स, जो मैंने स्टार्ट किया जस्ट 2-3 years बैक, ठीक है, आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद यू, getting it, ठीक है। So now let's suppose what is the difference it makes, let's suppose if you start at the age of 30, फर्क देख कितना होता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 2000 हो गया 700, या इधर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 नहीं कुछ, तो कितना पकड़ा था, 85 पकड़ा था ना, लेट इट बी, देख मतलब फर्क होता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, इफ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 30, ठीक है, एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट अर्ली तो बहुत मतलब it just come to the 2000, now it's 3300, are you getting it? Early age effect I will just show you over here that you will understand from this particular sheet, ठीक है, why you need to start early, this is very very important, ठीक है। guys I am saying term insurance भी जो भी मैंने बताया, just start जैसे आपका नौकरी लगे ना, फटाक से term insurance निकाल, क्यों, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का कैसे रहता है, इफ यू स्टार्ट एट अर्ली ना, मतलब इफ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 वगैरह, तो उसका प्रीमियम बहुत कम है, मतलब इस अराउंड 5000 कुछ तो पर ईयर वगैरह कुछ तो रहेगा, ठीक है, एंड दैट विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग, मतलब वो 5000 ही रहेगा। बट इफ यू स्टार्ट, मतलब तू सोचेगा नहीं मैं एट द एज ऑफ 30 निकालेगा, तो उसका प्रीमियम 12,000 होता है, एंड इफ यू जस्ट एक्यूमुलेट दैट अमाउंट तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो मतलब वी आर गोइंग टू पे मतलब मोर इफ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 30, ठीक है। तो जैसे तो काम पे लगा, इफ यू फील कि मतलब मेरा जॉब अगर लग गया, तो टर्म इंश्योरेंस निकाल देते रहा, बिकॉज इफ यू स्टार्ट अर्ली ना, तो उसका प्रीमियम बहुत कम रहता है, ठीक है। एंड टर्म इंश्योरेंस एज आई टोल्ड, मतलब ये इन्वेस्ट ये सब करने के पहले वो सब करना है, जो 3 चीज मैंने बताया, पहला सेविंग अकाउंट में 6 मंथ का पेमेंट रखने का, ठीक है, नेक्स्ट मेडिक्लेम निकाल के रखने का, और नेक्स्ट तेरा टर्म इंश्योरेंस निकाल के रखना, मतलब तू सब सेफ है, अगर तेरे को कुछ खर्चा भी आया मोटा मोटा, तो फिर वो मेडिकल वगैरह आ गया तो फिर वो सब संभाल लेंगे, तो इधर से तेरे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ, ये सीट के साथ आप खेलो, आई विल जस्ट शेयर विद यू लेटर ऑन, एंड जो मांगता है वो करो, एंड आपके हिसाब से प्लानिंग करो, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू शो दैट अर्ली एज इफेक्ट, ठीक है। अभी देखो मतलब दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट मेड, फटाफट कर दिया, मतलब फटाफट बता देता हूं मैं आपको क्या, लेट्स से सर लेट्स सपोज, सॉरी हाँ बोल, अटेंडेंस, अरे हाँ वेरी गुड वेरी गुड, खुशी ना, खुशी, मुझे खुशी हुई तूने याद कर दिया, अदरवाइज मैं भूलता बहुत हूँ। ओके थैंक यू, या सो लेट्स सी नाउ इस अर्ली एज इफेक्ट अभी क्या है समझो, मतलब देयर आर 2 पीपल, एक बंटी और गणेश है, ठीक है। बंटी थोड़ा क्या बोलते हैं, पैसा उड़ाऊ टाइप है, और गणेश थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप है, समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको कुछ पैसे की पड़नी, उसको उड़ाने का शौक है, ठीक है। हाँ बट बंटी ने एक काम किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही जस्ट स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम द एज ऑफ 18, समझो समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अर्ली एज इफेक्ट क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। he just started that saving from the age of 18, एंड गणेश ने किया सब सेटल वगैरह सब होने के बाद तब उसने चालू किया कि 26 एज से उसने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। एंड बंटी ने क्या किया कि 26 एज पे स्टॉप कर दिया, जिधर गणेश ने स्टार्ट किया था, मतलब 18 से वो अकेला था, कमा रहा था मस्त, मैंने उसके पास पैसा बच रहा था, उसने इन्वेस्ट करना चालू किया था, ठीक है। एंड 26 पे ले सब उसके 2 के 4 हो गए, एंड आफ्टर दैट उसको लगा यार पैसा नहीं बचा, तो उसने पूरा उड़ाना चालू किया, ठीक है। तो जस्ट इन्वेस्टेड फ्रॉम 18 टू 26, इतना ही इन्वेस्ट किया, और गणेश ने 26 से चालू किया, और वो रिटायरमेंट एज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, 60 एज तक, समझो, ठीक है। दोनों भी अभी क्या कर रहे हैं कि दोनों पर ईयर 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ईयर 50,000 कर रहे हैं, जस्ट पर ईयर 50,000 कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अर्ली एज इफेक्ट क्या होता है, एंड इट मैटर्स अ लॉट, that's why I'm just teaching this course at this particular age, okay, so that you can start early and you can just plan your financial planning, and you can just enjoy that freedom, ठीक है। because just कमाना is not only the key, उसको इन्वेस्ट करना भी the key, मतलब वो आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो जो भी ज्यादा कमाना उससे भी ज्यादा तो खुश हो सकता है, समझो इधर अभी, ठीक है। सो पर ईयर इन्वेस्टमेंट दोनों भी 50,000 कर रहे हैं, ठीक है। सो ईयर्स सेव मतलब क्या, कितने साल के लिए इसने सेव किया, तो 26 minus 18 इफ आई डू, तो उसने 8 साल के लिए सेव किया, एंड ही इज जस्ट गोइंग टू सेव फॉर 60 minus 26 34 ईयर्स के लिए,
ठीक है। तो अमाउंट बंटी ने इन्वेस्ट की है 50,000 पर मंथ, अगर पर ईयर करते जाए 8 ईयर्स के लिए, तो उसका अमाउंट है 4 लाख रुपीस। एंड गणेश ने जो इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर द 34 ईयर्स, दैट विल बी 17 लाख के अराउंड। ठीक है, इफ यू जस्ट डू दिस, वो 70 लाख आना चाहिए, 34 था उसका हाफ ही बनेगा। ठीक है, सो अमाउंट विच बंटी हैव इन्वेस्टेड इज 4,000 एंड दिस हैव इन्वेस्टेड इज 70,000, 70 लाख। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज जिधर भी इन दोनों ने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड और जिधर भी, ठीक है, लेट्स सपोज उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, समझो, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट 15%। ठीक है, अभी एट द एज ऑफ 26, मतलब जब बंटी ने 18 साल से चालू किया, गणेश ने 26 पे चालू किया। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 26 बंटी के पास कितना पैसा रहेगा समझ, मतलब उसने 26 तो मतलब 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% उसको रिटर्न आ रहा है। तो जब बंटी मतलब एट द एज ऑफ 26, मतलब उसके बैंक में जिधर भी उसने इन्वेस्ट किया उसका अमाउंट रहेगा 6,86,000। 6 लाख, उसने 4 लाख का इन्वेस्ट किया, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसका 4 लाख है, एंड ये 15% रिटर्न आते थे, उसका 6 लाख बन गया 8 साल में। ठीक है, हाँ, एंड गणेश ने जस्ट 26 में स्टार्ट किया, तो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 26, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, अभी बंटी ने क्या किया समझ, बंटी ने 26 पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, वो बोला पूरा 50,000 में उड़ाएगा, कुछ नहीं करेगा मैं, समझो पूरा 50,000 उड़ाएगा। ठीक है, और गणेश कर रहा है, नहीं भाई मैं हर साल 50,000 मतलब वो बचाएगा, इन्वेस्ट करेगा, समझो। ठीक है, so at the 26 इसके पास इतना पैसा था, इसके पास कुछ नहीं, बिकॉज इसने स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है, नाउ एट द एज ऑफ 30, लेट्स से एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30 मतलब कि इसने 26 के बाद स्टॉप किया, इसने 26 पे चालू किया। ठीक है, सो इसके पास कितना पैसा बचेगा, दैट इज दिस व्हाट आई थिंक 12 लाख रुपीस रहेगा इसके पास, मतलब आफ्टर स्टॉपिंग दिस, इसने इधर स्टॉप कर दिया एंड खत्म। ठीक है, तो उसका 12 लाख रहेगा, एंड इसका 2,49,000 रहेगा, उसने 26 में स्टार्ट किया। ठीक है, एंड इफ आई कंसीडर एज एज ऑफ 60, जब वो रिटायर होंगे, इसने बंटी ने कुछ नहीं किया, 26 के बाद पूरा लाइफ एंजॉय करना चालू किया, पूरा पैसा उड़ा रहा है, कुछ नहीं करा, बट हाँ ये पैसे को उसने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 60, ठीक है गाइस, दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला अप्लाइड है, इफ यू कैन चेक इट लेटर ऑन। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 60 नाउ बंटी विल हैव अ 7 करोड़, इज अबाउट इज राउंड ऑफ, इफ आई जस्ट डू इट 8 करोड़, एंड द गणेश विल हैव ओनली 3 करोड़। समझो, गणेश हर साल कर रहा है इन्वेस्टमेंट टिल द रिटायरमेंट एज, एंड बंटी मजे कर रहा है आफ्टर 26। ठीक है, सो दो बंटी डूइंग दैट मजे, बट एट द एज ऑफ 60 इफ आई सी दैट अमाउंट विल बी द 8 करोड़ एंड इसका अमाउंट 4 करोड़, मतलब डबल है बंटी के पास पैसा, तो उसने मतलब इन्वेस्ट नहीं किया, ये कंपाउंडिंग है, मतलब उसने जस्ट 6,86,000 करके छोड़ दिया, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं देख रहा हो। बट एट द एज ऑफ 60 इसके पास 8 करोड़ रहेगा, इसके बाद 4 करोड़ रहेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट द अर्ली एज इफेक्ट, दिस मैटर्स अ लॉट। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइन, सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस कोर्स टू यू पीपल, सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्ली एंड यू कैन जस्ट एंजॉय द बेनिफिट। ये मैटर बहुत करता है गाइस। ठीक है, वंस अगेन आई एम सेइंग, तेरा मंथली इनकम कितना ज्यादा, मतलब एक्चुअली वो मैटर नहीं करता, तेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से आ रहा है ना, यू कैन अर्न, मतलब यू कैन यू नो, मतलब हैव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड, मतलब जो ज्यादा अर्न कर रहा है तेरे से, उससे भी ज्यादा तू मजे कर सकता है। ठीक है, हाँ, and अगर दोनों भी तेरे पास है, मतलब मन की इनकम भी अच्छा, इफ यू नो द फाइनेंशियल नॉलेज, तो फिर बल्ले बल्ले, यू आर ऑन, लाइक बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा वैसा। Getting it? Okay, so this is for the early age effect. So this is that's all from my side. As I promised, the last 10 minutes I will just keep it for your question and answer. Yes, any questions? Anything you want to ask? The forum is open for you. I will give this shit. Don't worry. पैसे दो यार. मेल करो क्या करो? हाँ बोल. सर शेयर मार्केट मतलब लाइक स्टॉक्स एंड ऑल? हाँ स्टॉक्स ही, स्टॉक्स में ही डालना आपने वो पैसा. तो स्टॉक्स कैसे चूज करने का वही मैं पढ़ाने वाला हूँ बाद में, फंडामेंटल एनालिसिस में. एंड देयर यू विल सी एक्चुअली यू कैन मेक मोर देन 17%. सर बट हियर मैं अज्यूम कर रहा हूं 17%. हां बोलो, जो भी डाउट है पूछो. चलो सर, कंपाउंडिंग मतलब इंडेक्स फंड में ही कंपाउंडिंग होगा ना, स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग मतलब क्या, जो तू पैसा डाल रहा है उसके ऊपर, मतलब ले सको तूने 1 लाख डाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग क्या होता है. 1 लाख डाला, ठीक है, लेट्स सपोज जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000. फाइन, सो आफ्टर 1 ईयर यू विल बी हैविंग 1 लाख 10,000. आर यू गेटिंग इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस सर, समझ में आएगा? ठीक है, एंड उसके बाद अंदर यू आर गेटिंग 10, मतलब फिर से 10% तुझे मिलेगा, बट वो 10% अभी 1,10,000 पे मिलेगा. समझा क्या? 1 लाख के ऊपर नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर में. समझा ना? ठीक है, सो 1 लाख अभी मतलब वो हो जाएगा तेरा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर 11,000 मिलेगा तुझे. 11,000. ठीक है, तो फिर 1,21,000 हो जाएगा. नेक्स्ट 10% मिलेगा, 1,21,000 पे मिलेगा. एंड ये जो होता है ना, इफ यू जस्ट कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म, इट्स रियली वर्क एज अ मैजिक. समझा क्या? अब 1,21,000 में 12,000 मिलेगा, तो 12,000 जब तू ऐड करेगा नेक्स्ट ईयर पे, तो तेरा 1,32,000 समथिंग हो जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर 13,000 मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? 13,000 से भी ऊपर मिलेगा एक्चुअल में.
तो ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग. आर यू गेटिंग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट? ठीक है. एनी डाउट प्लीज आस्क. द फोरम इज ओपन फॉर यू. सर इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स मिलने स्पॉट निफ्टी पे करना पड़ेगा क्या इन्वेस्ट? क्या इंडेक्स फंड के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स मिलने स्पॉट निफ्टी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? या स्पॉट निफ्टी पे, मतलब जो भी निफ्टी चालू है उसमें इन्वेस्ट कर दे. अगर वही मैंने बोला, अगर एक साल पहले अगर आपने ये निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता आज तक डबल होता था. सर उसका लॉट्स रहता है ना, उसका तो ज्यादा अमाउंट रहता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं 54,000 ही डाल दे. अभी कैसे कंपनी. It's not like कि मतलब आपको 54,000 डालना है. Try to understand. You can just go for index fund ना. इस नहीं कि मतलब तेरे को मतलब 54,000 डालना है. तो इंडेक्स फंड मतलब कौन सा भी इंडेक्स फंड चूज कर. किधर है? जैसे उसमें यूटीआई इंडेक्स फंड, अब वो भी कैसा चूज करना है वो भी एक सही. बिकॉज़ यार ये index fund is same like SIP. या एसआईपी. यस वेरी गुड. इंडेक्स फंड इज मतलब हियर यू नीड नॉट टू मतलब इन्वेस्ट लाइक अभी तेरा सेंसेक्स चला 52,000 उतना नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता. तो मंथली यू कैन अमाउंट मतलब ऐड सम अमाउंट 2,000. तो वो 2,000 वो प्रोपोर्शनली जाएगा तेरा इंडेक्स फंड में. समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि मतलब तेरा अभी निफ्टी तेरा 15,000 चाहिए तेरे को 15,000 डालना है. नो, तो 2,000 भी डाल रहा है इंडेक्स फंड में. 2,000 भी डाल सकते हैं. तो समझ में आ रहा है क्या? तो जितने हिसाब से मतलब वो 50,000 बढ़ेगा उतने से तेरा 2,000 भी बढ़ेगा. आर यू गेटिंग इट? यस सर. Yes, sir. Yeah, LSO को The increase of percentage will same. Yeah, the increment of the percentage will be the same. Okay, sir. Sorry मुझे निफ्टी देखना है इंडेक्स फंड. You can just search for any index fund. अब ये म्यूचुअल फंड है, ये मनी कंट्रोल आपको सब सिखाऊंगा. डोंट वरी. यू विल बी मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स ना यू विल फील लाइक यस मेरे को साला कुछ तो आता है. मतलब इंजीनियर में ये लेके मैंने बहुत कुछ मतलब बड़ा अच्छा काम किया. या नाउ दिस इज व्हाट ये निफ्टी इंडेक्स है. मतलब अभी इफ यू वांट टू जस्ट गो इन दिस पर्टिकुलर यूटीआई, सो इट्स नॉट कि मतलब निफ्टी अगर तेरा 50,000 चल रहा है तो 50,000 डालना है. ठीक है. यहाँ पे यू कैन डू द सिप. ये सिप करके ऑप्शन होता है. यू कैन मंथली इन्वेस्ट लाइक 1,000 2,000 3,000 वो निफ्टी में जाएगा तेरा. खत्म. बिकॉज ये फंड है मतलब इंडेक्स फंड. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तू 1,000 कर रहे हैं, लाइकवाइज बहुत सारे लोग 1,000 कर रहे हैं. तो वो फंड मैनेजर के पास इतना पैसा था वो अभी वो इंडेक्स फंड में डालेगा. समझ में आ रहा है क्या? वो इंडेक्स में डालता है फिर. सर अभी 108 लिखा है वो उतना करना है ना पर मंथ. आज के लेक्चर पे डाउट था. हाँ बोलना. Sir, can you open the Excel sheet for 1 second? या मैंने वो ओपन कर दिया. Sir, so basically, amount to be deposited per month. Share market में remember when you put initial investment as 1 lakh, तभी share market में we just had to put in 500 or something, right? It's 19. रिटायरमेंट में नहीं 60 ना, ये 30 के यार. और सॉरी. हाँ बोल. हाँ अभी एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम डालना पड़ रहा है. बट व्हाट इज रिस्की सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालना, इज इट मोर रिस्कियर और पेइंग पर मंथ हायर अमाउंट इज मोर रिस्की? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मतलब इज यू नो मतलब बहुत सही चीज है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. लेट्स सी मतलब ये जो मैंने बताया अर्ली एज में देख इधर इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,80,000 है, 86,000 है. इसका 0 है. समझ में आ रहा है क्या? तो ये 6,86,000 मतलब आफ्टरवर्ड इफ यू डू नॉट डू एनीथिंग मतलब ये तो मंथली ईयरली कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इसका अमाउंट कितना बड़ा? बिकॉज यही तो कंपाउंडिंग है. इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने लगेगा. ओके समझा क्या? सो दैट्स व्हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मतलब गुड. इफ यू कैन डू इट्स गुड. इट्स रियली गुड. इट्स रियली गुड. गेटिंग इट? समझ रहे हैं सर? आप एक बार क्रोम ओपन करो ना वो साइड निफ्टी का. क्रोम ओके. हाँ किया सर. इसमें रिस्कोमीटर पे मॉडरेटली हाई आ रहा है रिस्क, पर लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपने बोला गारंटीड नो प्रॉब्लम. या तो लॉन्ग टर्म बिकॉज़ तो सी द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर मार्केट टिल नाउ ना फ्रॉम 1986 अब तक बढ़ा ही तो है. इंडिया भी तो आगे बढ़ेगा, थोड़ी नीचे जाने वाले. सर तो रिस्कोमीटर किसका रिस्क बता रहा है फिर? नहीं अभी कैसे ये रिस्कोमीटर हाई क्यों है पता है? बिकॉज़ दिस इज टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एंड अभी ये लास्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम हुआ है. मॉडरेट हाई है. अब मॉडरेटली हाई है. या फाइन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिस्क मॉडरेटली हाई क्यों है? बिकॉज़ दिस इज बिकॉज़ अभी जो मतलब लास्ट ईयर में जो सेंसेक्स में पूरा फॉल आया था उसकी वजह से ये गेटिंग इट. लास्ट ईयर देखना मतलब इफ यू जस्ट चेक इट आउट ये वाला मतलब अपना किधर से गया था 41,000 से डायरेक्टली. बिकॉज ये मतलब रिस्क वगैरह कैसे वो एवरेज करके मतलब लास्ट 5 इयर्स का एवरेज करके वो वगैरह बताता है. अगर तेरा 41,000 पे डायरेक्टली अगर 30 लेस वो कितना था 27 के आसपास आया था कुछ तो इतना अगर नीचे आएगा तो फिर रिस्क ही बताएगा ना फिलहाल. तो मतलब उसको वो मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा.
दैट्स व्हाई वी से मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको. आर यू गेटिंग इट? नाउ दिस इज फॉर द इंडेक्स आई एम सेइंग. उसके बाद अपन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आने वाले हैं बॉस. आर यू गेटिंग इट? ये इंडेक्स मतलब क्या, तेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, जस्ट तू इंडेक्स में काम कर, तेरे को मिलेगा, टेंशन नहीं है. फिलहाल तो हाई ही रहेगा ये मॉडरेटली रिस्कोमीटर. यस इज गोइंग टू हाई. Are you getting it? Because this is all because of the last pass, मतलब the 1 year में जो भी हुआ है उसकी वजह से. Getting it? यस सर. और वो एक्सेल शीट आप ओपन कीजिए ना. हाँ ले. सर इसमें हम लोगों ने, जब मैं समझो रिटायरमेंट हमने पकड़ा है 60, तो 60 में मुझे 90,000 पर मंथ चाहिए, तो तभी का 90,000 रहेगा आफ्टर वर्किंग इयर्स वाला वैल्यू ना. ये 9 लाख सर. तो हाँ, right. तभी वो 9 लाख रहेगा 60 पे. मुझे 9 लाख चाहिए. पर अभी 60 से मैं समझो 70 हो गया, तो वो 9 लाख नहीं रहेगा. हाँ ठीक है, गुड. मतलब यू आर सेइंग कि मतलब या परफेक्ट 60 पे तेरा इतना खर्चा है, पर उसके बाद बढ़ते जाएगा. बट दैट्स व्हाई मैंने 90,000 अर्जुम किया ना. 90,000 खर्चा होता है क्या? 10 इयर्स में कितना कम होगा? 6% इन्फ्लेशन पकड़. ठीक है. और एक चीज ठीक है. मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना पर मंथ मतलब 40 इयर्स के लिए अज्यूम किया है. इसके बाद तो बढ़ा भी सकता है ना. मैंने वो नहीं पकड़ा है, समझा क्या? दैट्स व्हाई आई सेड कि एवरीथिंग इज रियलिस्टिक. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एट द एज ऑफ 20 तूने चालू किया. अरे एट द एज ऑफ 30 तू इससे ज्यादा भी कर सकता है. 30 एज में 2000 कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है. यू कैन इन्वेस्ट 10,000 आल्सो. इफ यू आर लेट्स सपोज एट द एज ऑफ 30 योर सैलरी इज अराउंड 1,50,000 में करा, तो तेरे लिए 2000 क्या है फिर? तो 10,000 भी कर सकता है. समझा क्या? वो में नहीं पकड़ा है. एक्चुअली वी कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर शीट आल्सो. मतलब इसका एक्सपेंस का मतलब ये 90,000 एट द एज, उसके बाद उसका 6% रेट इधर भी ऐड कर सकते हैं. एंड हियर आल्सो वी कैन जस्ट से लाइक मतलब एवरी ईयर इफ आई एम इंक्रीमेंट बाय 10%, वो भी कर सकते हैं. तो वो एक्सेल शीट चाहिए तो आप बनाओ. ये मैंने जस्ट एक सिंपल रखा है. ठीक है. वी कैन जस्ट मेक इट लाइक मतलब इसमें भी आप यू कैन जस्ट पुट लाइक मतलब ये भी कर सकते हैं कि 10% ईयरली बढ़ाओ एंड उसका कैलकुलेशंस करो. वो भी सब कर सकते हैं. ठीक है. बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग 2000. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो. यू कैन मतलब मैंने देख इसको भी कम पकड़ा है एंड इसको भी बहुत ज्यादा पकड़ा है, सो दैट रियलिस्टिक रहे. समझा क्या? यस सर. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड गाइस इट्स 10:30. यू कैन लीव गाइस. जब मैं डाउट सेशन लूंगा ना, अगर आपको कुछ डाउट नहीं, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. You can leave guys. Sir, Yeah. अभी एक doubt था, like the age of 20 we are putting initial amount, like at the age of 25 we put 1 lakh या something. Then उसका क्या होएगा? तो तू चाहिए तो फिर ये मतलब हाँ तुझे अभी ये थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा. ठीक है. मतलब क्या करने का, इधर निकालने का कि इधर मतलब इधर से अभी सेपरेट करना पड़ेगा कि मंथली में इतना डाल रहा हूँ 5 इयर्स के लिए, वो कितना बनेगा. ठीक है. बाद में तो 25 के बाद इतना डालने वाला है, तो ये मतलब ये थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशंस बना पड़ेगा. तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा फिर मेरे को. तू बोला कि मैं 2000 डाल रहा हूँ 25 इयर्स तक. ठीक है. 25 के बाद 25 में कुछ तो इनिशियल अमाउंट डाल रहा हूँ. फाइन. हाँ ठीक है. तो एक काम कर, इधर पहले 25 कर दे एंड इधर तू 1 लाख कर दे. समझा? गेटिंग इट? ये मतलब गेटिंग इट? तुम मैं क्या 25 पे डायरेक्ट पकड़ रहे हैं. तो पहले तेरा 5 साल का तो बच गया, तभी भी तेरा 2000 ही मर रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो इससे कम ही रहेगा जो भी रहेगा. गेटिंग इट? ठीक है. मतलब जो भी बोलो ना, मैं तो ऐसा हवा में कुछ नहीं है, जो भी है मतलब रियलिस्टिक पकड़ के चल रहे हैं. गेटिंग इट? यस सर. अब तो 25 ईयर पे एक्चुअली अगर 20 से चलोगे तो 1 लाख के तू मतलब ज्यादा भी कर सकते हैं अगर तुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो. 20 से तूने पैसा बचाना चालू किया है तो. समझा? Any more doubt? Guys, it's 10:30. Yeah, you can leave if you want. सर आप अभी जब हाँ बोला. सर आप अभी जब ये पढ़ाओगे ये स्टॉक्स वगैरह का, तो उसमें आप वो इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ बताओगे क्या? नहीं.